ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗਗਨੀ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਰਵਨ ਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ गुरुद्वारा बादशाही बाग पातशाही 10वीं विखे हाजरियां कर रहे हैं। गुरु रहमत कृपा सदका इलाही बाणी के कीर्तन आप जी ने श्रवण किए हैं। समा है शब्द की विचार नाल जुड़न का। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं झुकाओ शीस, दासरे नूं बख्शो असीस, फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज फगण के महीने की शुरुआत हुई है। गुरु अर्जुन साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी 12 माह जो माघ राग विच उच्चारण है, तो इस पावन बाणी विचों इस महीने के नाम अखर तो जो उपदेश जीवन जाच गुरु साहिब जी ने सानू बख्शी है, आओ इसकी विचार श्रवण करना करिए। सब तो पहला शुरुआत विच एक गल पक्के तौर पे गुरु का सिख अपने हिरदे विच टिका के रखे कि गुरु के सिख वास्ते सारे ही दिन चंगे ने, कोई माड़ा नहीं है। क्योंकि इस बाणी की जिथे संपूर्णता होंदी है उथे हजूर ने आख्या है माह दिवस मुहूर्त भले जिसको नदर करे। माह महीने, दिवस दिन, मुहूर्त भाव समा, कोई भी समय नाल अखर लिखिया भले चंगे हैं। कोई दिन माड़ा नहीं, कोई महीना माड़ा नहीं, कोई समा माड़ा नहीं। गुरमत ने विचारधारा जो पेश की है, फिलासफी दी है, ते सतगुरु आखदे ने जिस समय जिहो जिहा सुभाव मनुख दे जीवन की अगवाई कर रहा है उहदे वास्ते वो समा उहो जिहा ही है। जिवें प्रमाणिक विचार मन्नी गई है, समय नूं 4 युगां दे विच वंडिया होया दसीदा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। इन्हां वक्खो वक्खरे युगां दे विच वक्खो वक्खरे कर्म प्रधानता मन्नी गई है। सतयुग नाम जपण की गल करदा है। किसी युग दे विच यज्ञ करने, तीर्थ आदि करने, इन्हां दी महानता दसी गई। पर हजूर की बाणी ने आख्या कि जिस वेले जिहो जिहा कर्म तुसी कर रहे हो, जिहो जिहा सुभाव तुहाडा है, जिहो जी विचार तुहाडी है, वो तुहाडे वास्ते समा उहो जिही है।
ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਲਯੁਗ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ, ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਕੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੂਠ। ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਭਲੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, 15 ਥਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਫੱਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 1 ਮਾਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਫਲਗੁਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਲਗੁਣ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਝ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਸੇਵਾ, ਧੀਰਜ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ।
तो सतगुरु की आखते ने जिसने सत संतोख दया धीरज जां जिन्हों चेत महीने विच आख्या सी चेत गोविंद आराधी है होवे आनंद घना। याद रखना चेत गोविंद आराधी है होवे आनंद घना। आनंद की गल कीती है। अज हजूर ने इस फलगुण महीने की गल करदे भी फलगुण आनंद उपार्जना गुणों का फल ये होगा कि तेरे जीवन में आनंद पैदा होगा। ये आनंद है कि इस गल को थोड़ा जानिया जी आनंद है कि साडी अपनी विचारधारा विच असी आनंद नूं की परिभाषा दी है। असी आनंद नूं केवल इन्नी कु परिभाषा देंदे हां कि जे घर दे विच मेरे मनपसंद की सब्जी बनी है स्वाद बनी होवे ते खा करके मैं कहांगा भी आनंद आ गया। कोई तन ते पहनिया होया कपड़ा बड़ा सुंदर लग रहा है चार जने ने तारीफ की तो मैं आखांगा कि पैसे लाए रास आ गए ने कोई तारीफ कर रहा मेरे कपड़ियां दी मैनू तो इसे विच ही आनंद आ गया। तो आनंद की बहुत छोटी जी परिभाषा संसार के इसी व्यक्तियों ने रखी हुई है पर आनंद किन्ना कु वड्डा ते किन्ने कु विशाल अर्थ करता है। इनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी विच पढ़ोगे तो धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी 40 पौड़ियां सिर्फ आनंद ते लिखियां हुई ने। 40 पौड़ियां सिर्फ आनंद की परिभाषा व्यक्त करदियां ने। आनंद है कि किवें मिलता है किवें प्राप्ति होंदी है इस बारे 40 पौड़ियां जिहड़ियां ने वो गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने लिख दित्तियां ने। जिहदी शुरुआत भी आनंद तो है जिहदी संपूर्णता भी आनंद ते जाके खत्म होंदी है। ये आनंद प्राप्त किवें हुंदा इस गल नूं पहलां जाण लईए। तो गुरु अमरदास पातशाह की आखदे ने आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। आनंद की प्राप्ति तदों है जे सतगुरु की मैनू प्राप्ति हो गई है। जे मेरे जीवन में सतगुरु ही नहीं है सतगुरु का उपदेश नहीं सतगुरु की बाणी नहीं सतगुरु की विचार नहीं है तो जीवन में कोई आनंद नहीं है। भावें मनुख किन्ने उच्चे वड्डे महल में रहिंदा होवे भावें सोने के बर्तनों में भोजन खांदा होवे ते आनंद नहीं है जे सतगुरु कोल नहीं है। तो सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज आखते ने मेरे जीवन में जे आनंद आया है तो आनंद उदों आया जदों सतगुरु की मैनू प्राप्ति हो गई है। फिर सतगुरु ने 40वीं पौड़ी दे विच सानू होर संबोधन करके आख्या आओ तुहानूं दसीए भी मैनू सतगुरु की प्राप्ति नाल किहड़ा आनंद मिलिया। ते सतगुरु आखदे ने आनंद सुनो वड भागी हो। बहुते इसनूं पाठ करने वाले आखदे ने आनंद सुनो वड भागी हो। आनंद नूं सुनना नहीं है सगों सतगुरु आखदे ने हे वड्डियां भागां वालिओ सुनो आनंद है कि आनंद है कि इस गल नूं सुनो। आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। आनंद इस चीज़ विच है भी जिथे सारे मनोरथ पूरे हो जान कोई आस इच्छा रहे ना किसी भी तरह की कोई इच्छा मन विच रहे ना भी आ नहीं मिलिया आ नहीं मिलिया ये नहीं मिलिया। मेरे जीवन में आनंद है भी सारे मनोरथ पूरे हो गए। और इनू सतगुरु बाणी में रहमत करदे आखदे ने भई सुहावी छापरी जा मैं गुण गाए। वो छपरी भी भली है जिथे रब का गुणगान किया जाता है। उस छपरी विच बैठा जो रब का गुणगान करता है ना तो वह आखदा मेरे जीवन में तो यही आनंद है जिस दे कारण करके मैं रब की सिफत सलाह कर रहा हाँ। भावें वड्डे महल माड़ियां नहीं छपरी है तो आनंद है जिथे मनोरथ कोई नहीं है जिथे आस कोई नहीं है। होर की होया होर आनंद विच की है पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। विसूरे का अर्थ है चिंता झोरे गिले शिकवे सारे मुक गए। रबा नहीं दिता चिंता ही खत्म हो गई। पार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई उतरे सगल विसूरे। फिर होर आनंद की है दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। ये है आनंद।
सच्ची बाणी नूं मैं सुनना शुरू कर दिता है, जीवन विचों दुख रोग संताप खत्म हो गए। भाव जे किते दुख आउंदा भी है तो मैं रब की रज़ा मन करके उस दुख विच भी सूख मनाई इस अवस्था ते पहुँचा हाँ। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भये सरस से पूरे, गुर ते जानी आनंदे है। सुनते पुनीत आनंदे है, सुनद्या ही पवित्र जीवन, गुरु के उपदेश को सुनद्या ग्रहण करद्या पवित्र जीवन वाले पासे तुर पई है। कहते पवित्र कहण वालियां दा जिहवा, कहण वालियां दी जिहवा ही नहीं उन्हां दा हिरदा भी पवित्र हो जाए। किवें? सतगुर रहिया भर भूरे, सतगुर हिरदे विच पूर्ण तौर ते टिक गया है, ये है आनंद। तो सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज ने अज इस आनंद की गल की है। फलगुण आनंद उपार्जना, जे सत संतोख दया धीरज सेवा सिमरन परोपकार दे गुण जीवन में धारण करेगा, गोविंद आराध्य दे मार्ग ते चलेगा, तेरे जीवन में आनंद पैदा होगा। हर सज्जन प्रगटे आए, सज्जन मालिक प्रभु जी तेरे अंदर प्रगट होणगे, तेरे जीवन में आनंद आएगा। ये सज्जन कौन है? तो सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज ने श्री राग विच सज्जन की परिभाषा दी भी। सज्जन कौन है? पंक्ति है, सज्जन सतगुर पुरख है। सज्जन कौन है? सतगुरु पुरख है। सतगुरु ही सज्जन है, क्योंकि सतगुरु ऐसा है जिहड़ा कदे भी साथ नहीं छड्डदा। सज्जन असल विच साथी नूं कहा जाता है, जिहड़ा सदा साथ रवे नाल निभे उहनूं कहा जाता है। सज्जन से नाल मैं चलद्या नाल चलन, सज्जन होने। तो सज्जन सतगुरु पुरख है, भाव सतगुरु पुरख हिरदे विच प्रगट सज्जन प्रभु मालिक प्रगट हो गया है, जीवन विच आनंद आया है। फिर सतगुरु नाल आखदे ने, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। ਜਿਹੜੇ सत संगत ਵਿੱਚ आ के बैठते हैं, ਜਦੋਂ प्रभु का जप करते हैं, सिमरन करते हैं, इन्हां दी लिव मालिक प्रभु नाल जुड़ जाती है। इन्हां दे जीवन ਵਿੱਚ आनंद ही आनंद भरिया होया है। ਜਦੋਂ मैं इन्हां दी संगत करदा हाँ तो ये मेरी मदद करते हैं नाम जपण ਵਿੱਚ, ते मेरा भी उस मालिक प्रभु दे नाल मिलाप बन जाता है। इस करके भले मनुखों की संगत करने वास्ते वार वार कहा जाता है कि चंगे मनुखों की संगत करांगे, चंगे गुण जीवन में धारण होंगे। किसी सफल मनुख की संगत करांगे तो सफलता वाले पासे जावांगे, किसी निसफल ते हारे होए की संगत करांगे तो साडे भले भी हार पेगी। जे चढ़ती कला वाले की संगत करांगे तो साडे विच भी चढ़ती कला की विचार आवेगी। जे ढैंदी कला की विचार वाले नाल संगत करांगे तो असीं भी ढैंदी कला विच डिग पावांगे। तो हजूर की आखदे ने, संत सहाई राम के। संत संत जनां सतसंगी जनां आख्या, ये सहाई होए ने ते इन्हां ने रहमत की, कृपा की, इन्हां दी संगत हुई है ते कर कृपा दिया मिलाए। इन्हां ने कृपा करके उस सज्जन प्रभु नाल मिलाप बना दिता है। सेज सुहावी सर्ब सुख हुण दुखा नाही जाए। मेरी हिरदा रूपी सेजा सुहावी हो गई है, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राज। मेरे हिरदे रूपी घर विच गुरु आ गया है, मेरा हिरदा रूपी सेजा ये सुहावी हो गई है। किसी स्थान बड़ा शिंगारिया गया हो, सोहना बनाया गया हो, मानो असी अपने घर दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप बाणी का पाठ करने वास्ते लै करके जाते हैं। उस स्थान की चंगी तरह सफाई करते हैं, चंगी तरह तैयारी करते हैं, सोहना सजाते हैं, सजावट करते हैं। तो जिस वेले धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप उत्थे पहुँच जाते हैं तो याद रखना, वो भावें किसी का घर क्यों ना आवे, वो घर गुरु घर बन जाता जी। क्योंकि गुरु के कारण करके तो असीं बैठे हाँ उत्थे जा करके।
इस करके सतगुरु आखते ने मेरी हिरदा रूपी सेजा विच जे गुरु आ गया तो यह सेजा सुहावी हो गई है। इस सेजा की सजावट हो गई है, गुरु के आउण नाल सजावट हो गई है। इस जगह नूं चार चंन लग गए। तो सतगुरु कृपा करते हैं। हुण दुखा ना ही जाए, इस सेजा ते हुण दुखों की कोई थां नहीं है। हुण नहीं दुख आउंदे क्योंकि सुखों का दाता आ गया है। इस करके दुखों को कोई जगह ही नहीं है, दुखों को कोई थां ही नहीं है। इच पुन्नी वड भागुनी वर पाया हर राए। वड्डियां भागां वाली जीव रूपी स्त्री की इच्छा पूरी हो गई है। वर पाया हर राए, परमात्मा रूपी वर मिलया है। यही वर मंगिया सी मैं, यही वर मंगिया सी मालिक तो यही वर प्राप्त किया सी। प्राप्ति का ही ये वर मंगिया सी कि मैनू मिल जाए। तो इस करके मेरी इच्छा पूरी हो गई। हुण मेरे सहिया मंगल गावही गीत गोविंद आलाए। घर में जदों कोई खुशी का माहौल हुंदा ना तो मनुख कोशिश करता यतन करता भी आंढियां गुआंढियां नूं बुला लईए। खुशी का माहौल है, घर में कोई विआह रखिया होवे ते तां रिश्तेदार इकट्ठे असीं कर लईदा भी दसीए भी घर में खुशी है। एक खुशी जिहड़ी है मनुख दूजियां नाल भी वंडना चाहुंदा है, दूजियां नूं भी दसना चाहुंदा है। तुसीं वेखो भी जे मनुख नूं कोई दुख होवे ना, कोई तकलीफ होवे, एक कोशिश करदा ते कहंदा मैनूं कल्लियां रहण, मैनूं कोई बुलावे ना, मैं इकल्लियां रहना चाहुंदा, मैं इकल्ला ही ये समा कटना चाहुंदा। पर जदों खुशी का समा होवे ते खुशी किसी दूजे नाल प्रगट करने वास्ते एक दूजा साथी लगदा भी मैं ये दसां नूं जा करके। दुख एक कल्ला ही सहारना चाहुंदा है, दुख वेले किसी नाल गल नहीं करना चाहुंदा, पर खुशी वेले ये सारिआं नूं कोल बुलाउंदा है, आवाज़ां मारदा है। हजूर आखदे ने जदों अकाल मूरत रूपी वर परमात्मा मिल गया है, हुण मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। सतसंगी जनां नूं आवाज़ मारी है ते आकर आवाज़ मार के आख्या भी आओ मालिक प्रभु की सिफ सलाह का गीत गाइए। मेरी हिरदा रूपी सेजा विच आ गया, घर आ गया। आओ दा स्वागत करिए, आओ दा शुकराना करिए, आओ दा धन्नवाद करिए। मेरी हिरदा रूपी घर सेजा विच आ गया, मैनू बड़ी खुशी बनी है। आओ इस खुशी का इजहार करिए। मेरे सहियां मंगल गावियो, फिर सतसंगत विच मिल करके मालिक प्रभु की सिफ सलाह का मंगल खुशी का गीत गाते हैं। तो की कहते हैं इस खुशी रूपी गीत विच की आख्या जाता है? इस गीत विच, इस अखर विच, इस बोल विच जिस दी प्राप्ति होकर के खुशी हुई है उहदी वडियाई, उहदे गुण बयान किए जाते हैं, उहदे गुणां नूं बयान किया जाता है। तो पंक्ति है हर जेहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवह ना लाए। उस दे सिफत सलाह के गीत विच ये अखर पाया गया, ये पंक्ति पाई जाती है कि उस वर्गा कोई दूजा नहीं है, उसकी बराबरी तो किसी को नहीं रखा जा सकता। ऐसा क्यों? हजूर आखदे ने दुनिया संसार के जिन्ने भी रिश्ते ने, ये रिश्ते जड़े ने ये जिन्ना चिर ते स्वार्थ है उन्ना चिर जुड़े हुए ने। जदों स्वार्थ खत्म हो जाता है तो भी पिछा हट जाते हैं, ये पिछा हट जाते हैं। जिन्ना चिर स्वार्थ पूरा होंदा है उन्ना चिर नाल जुड़े रहते हैं, उन्ना चिर पुछ दस करते रहते हैं। जदों स्वार्थ खत्म हो गया तो उदों ही जिहड़ा है ये पासा वट जाते हैं। कोई दुख का समा होंदा है, थोड़ा कुछ चिर ते नाल खलोंदे ने, पर जदों ये दुख जीवन विच आ जाता है, ये मुसीबत इकल्ले व्यक्ति नूं झेलनी पैंदी है। हजूर ने की कृपा की, रहमत की कि अकाल पुरख वाहिगुरू ऐसा है जिहड़ा किसी भी समय मनुख का साथ नहीं छड्डदा। भावें दे कोल गरीबी होवे तां भी साथ नहीं छड्डदा। ते हजूर आखदे ने सबो भजै आसरा चुकै सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती वाओ। आ दुनिया के जिन्ने भी नेड़े तो नेड़े दे रिश्ते ने ना, एक कोई ना कोई गिला शिकवा मेरे नाल करते रहंदे ने, कोई ना कोई गिला शिकवा करते रहंदे ने। मैनू आ नहीं दिता, मेरे नाल आ नहीं होया, मेरे नाल ये नहीं होया, मैनू ये नहीं मिलिया।
पर इको एक सतगुर एक अकाल पुरख वाहिगुरू है। कदी कोई उलांभा नहीं भी तू मेरा नाम नहीं जपिया, कदी कोई उलांभा नहीं है। क्यों? बाणी विच रहमत हजूर करते हैं तो वो अकिरत घणा नूं भी पाली जा रहा है। जिहड़ा नहीं ना जप करता उन्होंने भी पाली जाता है। उहदा किसी नाल कोई शिकवा नहीं है, किसी नाल कोई गिला नहीं। कोई जप करता ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। तो हजूर आखदे ने इस करके उहदी बराबरी का दूजा है ही कोई नहीं है। फिर अगे है हलत पलत सवारे ओण निहचल दित्तियां न जाए। उन्हें मेरा हलत पलत दोवें सवार दिते ने। गुरु ही है जिहड़ा हलत पलत सवारन वाला है। गुरु जदों रहमत करदा किरपा करदा मनुख दा हलत पलत दोवें थां सवार दिंदा है। एक बेनती इहदे नाल हल ते पल दे दो जड़े अखरी अर्थ किए जाते। हलत आदेश का होया है संसार, पलत परलोक दूजा था दूजी थां। पर गुरबाणी विच जिन्नी वारी भी अखर आउणगे ते याद रखिया जे लगभग हलत ही पहला आवेगा तो पलत बाद विच आवेगा, लोक पहला आवेगा तो परलोक बाद विच आवेगा। इत्थे उथे रखवाला, इत्थे दी गल पहला होवेगी उथे दी बाद विच होवेगी। इहा ऊहा नानक तेरी रखै, इत्थे दी गल पहला विच उथे दी बाद विच है। जे इत्थे कुछ सवारिया तो अगे कुछ मिलेगा, जे इत्थे कुछ सवर नहीं सकिया तो अगे भी कुछ भी प्राप्ति नहीं है। इस करके शुरुआत साडी इत्थे होवेगी। इसे कर्म नूं इसे समय नूं मनुखा जीवन नूं ही संभालना पवेगा। इनू ही जड़ा कर्म विच लै करके आना पवेगा। फिर परलोक आपे सुखी होवेगा। पहला लोक सुखी करना पवेगा, पहला जप करना पवेगा, फिर हौली हौली सहज बनेगा, हौली हौली टिकाव बनेगा। इन्नी भी पहले दिन ही सुरत एकाग्र हो जाए, बड़ा मुश्किल कार्य है। हौली हौली शुरुआत करांगे, अभ्यास करांगे तो मन का टिकाव आना शुरू हो जाएगा। हजूर कृपा करदे आखदे ने हलत पलत सवार आउण मालक ऐसा है, दोवें थां ही सवार देंदा है। गुरु की वहमा करदिआं गुरु अर्जन साहब महाराज ने बिलावल राग विच बचन रखे है, दोवें थाम रखे गुर सूरे। उन्हें दोवां थावां ते मेरी राखी कीती है। अगली पंक्ति नाल इस अर्थां विच निहचल दित्तियां न जाए, मैनू वो जाए थां टिकाणा दे दिता है जो टिकाव वाला है। निहचल है, चलाएमान नहीं है। मैनू इस दर ते लिया करके बिठा दिता है, तो भरोसा दिता है भी तैनू ये दर छड्ड के हुण किते जाण दी लोड़ नहीं है। इस दर छड़ के किते जो कुछ भी तेन चाहिए, जो भी इच्छा करेगा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बाणी आखदी है मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे। इत्थे सब कुछ पूरा हो जाएगा। इत्थे किसी चीज़ की कोई घाट नहीं, कोई कमी नहीं है। निहचल दित्ती ने जाए, मालिक ने मेरा अंदर टिका दिता है। मैं कदी किस थां ते जांदा सा, कदी किस थां ते जांदा, इत्थों कुछ मिल जाए, इत्थों कुछ मिल जाए, पर भटक भटक करके आया इसे द्वारे ते। हाँ सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, इत्थे आ गया हाँ। ते मालिक ने रहमत करके कोल बिठा लिया ते आख्या हुण तैनूं किते भटकन की लोड़ नहीं, किते जाण की लोड़ नहीं है। क्यों? ये भरोसा कर अपने अंदर ते आख साचे साहिबा, क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है। निहचल दित्तियां न जाए, थां टिकाण होर किते जाण की लोड़ नहीं है। इत्थे सब कुछ तैनूं मिल जाएगा, इत्थे सब कासे की प्राप्ति हो जाएगी। संसार सागर ते रखियन बहुड़ न जन्मै ताए। सज्जन प्रभु मेरे हृदय रूपी घर विच आया तो उन्हें ये संसार सागर तो ही राखी की है। जिस संसार सागर विच सारे डुबते जा रहे हैं। ये संसार विषयां विकारां रूपी सागर है, जिस विच काम क्रोध लोभ मोह हंकार दा चिक्कड़ पानी है, तो लोग डुबते जा रहे। कोई काम के सागर में डुबदा जा रहा है, कोई क्रोध के सागर में डुबदा जा रहा है, कोई हंकार के सागर में डुबदा जा रहा है, कोई लोभ के सागर में डुबदा जा रहा है। सारे डुबी जा रहे हैं। क्यों? गुरु कोल नहीं है। जिन्हों हजूर आखते ने बाज गुरु डुबा संसार, गुरु कोल नहीं, इस करके डुबते जा रहे हैं। भाई गुरदास ने इसे करके गुरु नानक साहब महाराज जी का अकीदा जाहिर किया भी क्यों
ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਵਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਬਰਾਂ ਮਸਾਣਾ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਬਰ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। घर विच गया, कबर ढा करके आ गया है। गुरु की सिक्खी कमाने वास्ते सेवा विच गुरु अर्जन साहब महाराज ने पहला जोड़िया है। पहला सेवा कर, पहला वो हिरदा बना। तो जिस दिन का सेवा विच हौली हौली लग्या है, सेवा प्रवान होंदी गई है। तो कहते हैं एक दिन सेवा प्रवानगी की पक्की मोहर लगनी है कि तेरी सेवा प्रवान होगी, पक्की मोहर लगन वाली है। पक्की मोहर लगन वाली है। तो एक परचा होर पै गया, एक इम्तिहान होर आ गया। ये गुरु के लंगरां दे विच लकड़ां लिया करके जिहड़ा है बालन वास्ते देंदा है, तो फिर उतों भोजन प्रसादा पानी छक लैंदा है। गुरु अर्जन साहब महाराज ने पूछा भी भाई मंझ इत्थे सेवा करदा है तो खांदा पींदा कित्थों है। सिख कहंदे ने भी ये लंगर चों ही खांदा है। तो गुरु साहब आखते ने भी ये तो फिर मजदूरी करता, सेवा तो कोई नहीं ना करता। लकड़ां लियाया इकट्ठियां करके लंगर विच दे दित्तियां, प्रसादा इत्थों छक लिया, ये तो मजदूरी हो गई। अपने निर्वाह वास्ते की करता है। सिख ने जा करके भाई मंझ नूं दस्सिया भी गुरु साहब तिवें आख रहे हैं। तो भाई मंझ ने की किया, उस दिन तो 2 पंडां जड़ियां लकड़ां दियां लै करके आउण लगा। एक सेवा वास्ते दे दिंदा लकड़ां दी पंड, ते एक बाजार विच वेच करके पैसे लैंदा, तो उहदे नाल राशन पानी लैके ते भोजन प्रसादा करन लग गया है। कहंदे ने कि बड़ा जोरदार मींह पैंदा रहा। गुरु के लंगरां दे विच लकड़ां दी कमी आ गई, बालन गिला हो गया। एक पांडे दे घर विच पई हुई सी, इहनूं पता लग्या ते कहंदे ने मींह हटिया ते ओह लकड़ां दी पंड अपने सिर ते चुक करके लंगर वाले पासे तुर पिया। जमीन अजे गिली है, पैर तिलकिया तो खूह विच डिग गया। जिस वेले खूह विच डिग्या तो कहंदे ने इन्हें बड़ा हौसला दलेरी रख करके की कीता भी खूह विच डिगे हुए ने लकड़ां दी पंड सिर ते उठाई हुई है। ते धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी के चरण खूह विच डिग्गा होया। जदों कोई व्यक्ति मुसीबत विच पैंदा ना, तो मुसीबत विच पैंदा 2 गल्लां ध्यान विच रखदा है। सब तो पहलां तो रब अगे अरदास करदा है, तो दूजा भारी मुसीबत विच पै जावे तो फिर रब नूं लांभा भी बड़ी छेती दिंदा है, रब्बा मेरे नाल तो यह की कीता, मैं तो इन्नी सेवा करदा सां। पर कहंदे ने भाई मंझ ने गुरु अर्जन साहब महाराज के चरणों का ध्यान करके गुरु अर्जन साहब महाराज का शुकराना किया भी खूह विच डिग पिया। एवें किवें? शुकराना इस वास्ते किया है, कहन लगे भी लकड़ां दी पंड जिहड़ी है मेरे सिर ते आ, बालन गिला नहीं होया, इहदा शुकराना करदा है। खूह विचों आवाज़ां मारी जा रहा, कोई बचा लवे, लकड़ां दी पंड बाहर कढ़ लवे। कुछ व्यक्तियों ने सुनिया है गुरु अर्जन साहब जी का नाम पुकारी जा रहे, तो कहते हैं भी सिखां ने जा करके गुरु अर्जन साहब महाराज ने दस्सिया। गुरु अर्जन साहब महाराज आप चल करके आए ने, रस्सा सुटिया गया। भाई मंझ नूं आख्या भी रस्से नूं फड़ ते खूह चों बाहर आ जा। भाई मंझ आखदा सतगुरु रहमत करो, पहला लकड़ां दी पंड बाहर कड्डो, बालन विच लंगर विच पहुँचाया जाए बालन, फिर मैं ही बाहर आ जावांगा। जदों किते मुसीबत पैंदी है ना तो असीं कोशिश करदे हां पहला मैं बच जावां, बाकी गल्लां फिर वेखियां जाणगीआं।
पर भाई मंझ का हिरदा वेखो आखदा पहलां लकड़ां की पंड बाहर कड्डो, मैं खूह विच डिग्गां ते डिग्गा रहण तो पहलां लकड़ां जिहड़ियां ने बालण विच दी थां ते लंगरां विच पहुँचाईयां जाण, गुरु का लंगर तैयार होवे, सिख संगतां छकण। कहंदे ने गुरु अर्जन साहिब महाराज ने इवें कीता है, लकड़ां की पंड पहलां बाहर कढाई है ते बाद विच भाई मंझ जिहड़ा है रस्सा नूं फड़ करके ते बाहर निकल आया। गुरु अर्जन साहिब महाराज के सामने खलोता है ते बेनती कीती, ऐ गुरु अर्जन साहिब महाराज, मैं खूह विच भी डिग्या होया तेरा शुकराना करी जा रहा सा, तेरा धन्नवाद करी जा रहा सा, पर मेरे अंदर तुहाडे प्रति एक भरोसा सी। भरोसा इस गल का सी कि जिस मंझ नूं कबरां मड़ियां मसाणा दे वहमां भरमां पखंड दे खूह विच डुੱਬਣ तो तू बचा लिया, ते आ खूह विच डुੱਬਣ तो मैनूं जिहड़ा भी क्यों ना बचाएगा। वहमां भरमां पखंडा मड़ियां मसाणा कबरां दे खूह विच डूंघे खूह विच जिहड़ा डिग पैंदा छेती निकलदा नहीं है। ऐ गुरु अर्जन साहिब महाराज, तुसीं ते मैनूं उस खूह विचों बाहर कढ लिआंदा है, ते फिर तुसीं मैनूं इस खूह विचों किवें नहीं सी बाहर कढ सकदे। मैं तुहाडा तां ही नाम जप रहा सां, तां ही तुहाडा शुकराना भी कर रहा सां, तां ही अरदासां कर रहा सां। ते कहंदे ने भाई मंझ नूं सचमुच गुरु अर्जन साहिब महाराज ने गल लाया ते सचमुच अज सिक्खी पक्के तौर पर दे दी। केवल कली सिक्खी नहीं दी, सगों ही आख दिता है, मंझ प्यारा गुरु को गुर मंझ प्यारा, मंझ गुरु का बोह था जग लंघन हारा। एडी वड्डी उपाधि दे दी है। तो हजूर की आखदे ने संसार सागर ते रखे ना, गुरु ऐसा है संसार रूपी विषयां विकारां दे सागर विच डुबदे होए दी राखी करदा, बचा लैंदा है। फिर अगे है बौड़ ना जन्मै ताए, फिर व्यक्ति वार वार जन्मां विच नहीं पैंदा। जिहवा एक अनेक गुण, ए मालिक मेरे कोल ते इक्को जीव है पर तेरे गुण अनेकां ने। तरे नानक चरणी पाए, पर जिसने भी भरोसा करके तेरे गुणां नूं गाया, वो व्यक्ति तेरे चरनां नाल जुड़ करके तर गए ने। अखीर पंक्ति फल गुण नित सलाहिए, जिसनों तिल ना तमाए। हजूर आखदे ने इस महीने के खास अखर तो उपदेश सुनो कि नित सलाही है। ये नहीं भी महीने के पहले दिन सिर्फ सलाह करनी है, महीने के पहले दिन ही इत्थे आना है, नहीं। नित सलाही है, निता प्रति। किस दी सिफ सलाह? जिसनों तिल ना तमाए, जिसनों अपनी सिफ सलाह करन दा रता भी लालच नहीं है। याद रखना, हजूर आखदे ने जिसनों तिल ना तमाए। तमा लालच, तिल तिन जिन्नी भी, तमा तिन जिन्ना भी लालच नहीं है भी सारे मेरी सिफत करन, वडियाई करन। मनुख संसार व्यक्ति नूं हर वक्त इस गल का लालच रहिंदा भी लोग मेरी सिफत करन, मेरी वडियाई करन। भावें मैं चंगा काम करा तो भावें माड़ा करन, लोग मेरी सिफत ही करन, मेरी वडियाई करन। इसे करके चोर जिहड़ा है रात के हनेरे में चोरी करन जांदा, दिन के उजाले में नहीं भी फड़ लिया तो बेइज्जती होगी, बेइज्जती तो डर लगता है, क्योंकि सारी इज्जत चाहते हैं। हजूर की आखदे ने कि रब नूं परमात्मा नूं तुहाडे कीती सिफ सलाह दा लालच कोई नहीं है, पर इहदे विच साडा भला है। जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे, घाट ना जाए, पर असीं उहदी सिफ सलाह करनी है तो उहनूं कोई लालच देने वास्ते नहीं भी मैं तेरी सिफ सलाह करदा, मैं इन्ने दिन करांगा तो मैनूं आ दे। इस गल नूं ध्यान नाल सुणिया जे, रब नूं किसी तरह का कोई लालच नहीं है। इन्ना दान करेगा तो ताही तेनों दात मिलेगी, ये रब नूं लालची ना बनाइए। असीं जिसनों तिल ना तमाए नूं रता भर भी कोई लालच नहीं है। हाँ, उहदी सिफ सलाह करनी चाहिए है, इहदे विच साडा भला है, इहदे विच साडा मनुखा जीवन का भला है, इहदे विच साडा मनुखा जीवन जिहड़ा है सवर जाएगा। तो गुरु अर्जन साहिब महाराज ने रहमत बख्शिश करके अज सानूं फिर समझा दिता है कि जिस हिरदे रूपी घर विच मालिक सज्जन प्रभु जी आ गए ने, गुरु की सिक्ख्या आ गई, गुरु का उपदेश आ गया है, उहदे जीवन विच आनंद उपार्जन, उहदे जीवन विच आनंद पैदा होया है। तो 12 माह की यह पवित्र बाणी जिहदी शुरुआत भी आनंद तो, चेत के महीने का पहला महीना जिहड़ा है चेतर का, उहदे विच लिखिया चेत गोविंद आराधिया होवै आनंद घना, ते अखीर विच भी आख्या फलगुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। गुरु रहमत करे, गुरु के उपदेश नूं असीं भी अपने हिरदे विच धारण करिए ते इस आनंद नूं अपने जीवन का जिहड़ा है वो आधार बना लीए। गुरु के पवित्र शब्द की विचार करदिआं
ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।